Yes. So today's topic is NCERT back exercises of the chapter cell, and I think ये जो chapter है बड़ा interesting है और इसमें जो बच्चे हैं they are very very expert. तो ये फटाक से मुझे जल्दी जल्दी answers बताते जाना है सबने, and we will finish the back exercises soon. Back exercises के साथ में बेटा I have already typed in the in-text questions also. जो वो blue italics में print होते हैं वो भी मैंने बीच में print लिए हुए हैं, and I'll send you the PDF file. Kindly go through the questions very thoroughly. आपने क्वेश्चंस को बहुत thoroughly go through होना है because अभी इस टाइम पे the pattern of exam is all over online. तो अब online में the theoretical questions are not being given, MCQs or one word questions are given. So you have to read the chapter very thoroughly. Okay, so chalo let's get started. The very first question, Anshu, you tell who discovered cells and how. Ma'am, Robert Hooke discovered cells in Yes. 1665. And how? Ma'am, he observed a thin slice of coke under a self-designed microscope. Yes. He saw that the cell resembled a honeycomb-like structure with many compartments. He Yes. called these compartments cells. Yes, very good. So Robert Hooke, he discovered cells, right? I'm writing in short, but आप इसको properly लिख लेना क्योंकि यहाँ पे लिखना is not possible that much. Second is how he observed very thin slice of cork. ठीक है बेटा? Thin slice of cork. कॉर्क जो होता है ना बेटा आपको मालूम है कि वो इट्स अ डेड लेयर है ना, आउटर लेयर होती है एंड इट इज डेड, Bark of a tree. यस, बार्क ऑफ अ ट्री आप कह सकते हो, राइट. एंड उसने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप बनाया था और आप ये देखो उस टाइम पे देयर वाज नॉट सो मच इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी. द टेक्नोलॉजी वाज नॉट दैट गुड बट स्टिल ही कुड सी कंपार्टमेंट लाइक सेल्स. उसको ऐसा कुछ दिखा था, राइट? तो उसको इंग्लिश में वी कॉल इट द क्लोज कंपार्टमेंट्स एज द सेल्स, राइट? नाउ why is the cell called the structural and functional unit Because of life? every living thing is made up of cells, and Yes. cells further make up an organism. Okay, fine. Hierarchy में चलते हैं. Yes. So structural unit तो इसलिए हुआ कि every organism, be it a unicellular organism or it may be multicellular organism, all type of organisms are made up of cells, right? Every organism's life it always starts with the cell only. वो cell से ही start होती है, right? So structural में तो आ गया, be it any kind of organism, the cell is the basic. Cells make tissues, Yes. tissues make muscles, muscles make organs, organs make systems. अरे नहीं अरे मैम, अरे हाँ, ये मसल बीच में कहाँ से आ गया? No. Cell, tissue, organ, organ system, organism. Yes. How did this muscle came into origin, right? Prithvi? Okay, no issues beta, no issues. तो सेल जो है बेटा, it is the basic structure of all the organisms, चाहे वो unicellular organism हो, चाहे वो multicellular. Okay? Yes, Ashi, is it clear? Yes, ma'am. आप मुझे बताओ, how is it the functional unit of life? May I tell? Yeah, sure. Cell is called a functional unit of life because all the functions like digestion, respiration, and excretion are done inside the cell by its own. Yes. जो सेल होता है ना बेटा वो ये सारे फंक्शंस कैरी ऑन करता है, क्योंकि अगर आप जैसे अभी हमें पृथ्वी ने भी बता दिया कि आप अगर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखते हो, राइट? अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या चीज नहीं हो रही? एवरीथिंग इज बीइंग डन. वो रिप्रोड्यूस भी कर रहा है, वो रेस्पायर भी कर रहा है, वो डाइजेशन प्रोसेस भी कर रहा है, उसमें प्रोटीन्स भी बन रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, पावर जनरेशन भी हो रहा है. सो एवरीथिंग इज बीइंग डन ओवर देयर. तो मतलब एक सिंगल सेल इज एबल टू कैरी ऑन ऑल द फंक्शन. तो ये फंक्शनल यूनिट ऑफ, यस, इंडिपेंडेंटली. तो जरूरी नहीं होता कि हमारे को बहुत सारे सेल चाहिए. तो सेल जो है बेसिकली सारे फंक्शंस को कैरी ऑन करने में एक कैपेबिलिटी रखता है. सो इट इज वेरी केपेबल ऑफ कैरिंग ऑन ऑल द फंक्शंस, राइट? Yes, ma'am. Okay. Yes. Carrying on every function. Okay. अब मुझे ना पार्थ बताएगा बेटा. पार्थ मुझे आप बताओ, how do substances like carbon dioxide and water move in and out of the cell? I am asking substances like carbon dioxide and water. Yes बेटा. मैम मैं बताऊं? नहीं बेटा, let Parth answer. Ma'am, Everyone should participate. Yes. नहीं भव्य, wait.
I'll ask you in the end. Okay? Let others also answer. Okay, ma'am. Good. Now tell me, Parth, are you there? मेरे तो यही आंसर है नोटबुक में भी. Okay. Okay, बेटा Parth, are you there? Yes, ma'am. Yes, बेटा बताओ मुझे how do सबसे पहले मुझे आप कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताओ. How do carbon dioxide move in and out of the cell? Obviously it moves in, obviously it moves out. How? Yes, Parth. If you're not there, if you don't know the answer, it doesn't matter, but just kindly let me know. Okay, so that I can pass on the question to the next candidate. Yes, beta. Ma'am, Parth is not there. Parth is there. I could see. मैम मैं बताऊं? नहीं. Ma'am, मेरे Parth. को बताना. रुको. This answer will be told by Anshu because it's her favorite subject. Yes, Anshu. Anshu, I have so many candidates to tell the answer. Please answer the question. Ki how do carbon dioxide it travels in and out of the cell? If you are there, kindly answer me. Otherwise, message me, chat me. Ki ma'am, my net is not there. I won't mind. Yes, Ashi, you can tell. That's it happens. Whenever I start asking questions, everybody's nets goes off, right? No, मैम हमें हर वक्त ऑन रहते हैं. चलो पृथ्वी, you tell. आप कार्बन Ma'am, डाइऑक्साइड because बताओ. the cell wall is selectively permeable. No. I'm asking how do. मैम मैं बताऊं? हाँ, नहीं रुको पहले. कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी will tell. Water you will tell. Ma'am, exchange of gases. Ma'am, मैं term भूल गया. Okay, अंशु आपको मेरी आवाज नहीं आ रही मैं बेटा? बताऊं? चलो आप बताओ बेटा. Okay, भव्य. I CO2 is a surrender. reservoir waste produced during the respiration. This moves out of the cell when there is a less concentration outside the cell and high concentration inside the cell. Yes. The name of the process is called diffusion. Yes, very good. So movement Ma'am, जो हो इसका रही है term क्या होता था? मैं भूल गया. diffusion बेटा. Gaseous जो भी gaseous product होगा, it is going in and out on the mechanism of high concentration to low concentration, and the term is diffusion. Okay, so movement जो हो रही है, that is on the फंडा. क्या है फंडा? वो high concentration to low concentration. Yes, very good. और इसमें बेटा there is no role of the cell membrane, है ना? हमारे में सिर्फ हम क्या देखते हैं, high concentration से low concentration हो रहा है. So this is termed as your diffusion. Okay. Now भव्य आप मुझे बताओगे water movement. Water moves in and out of the cell when there is a less water present in the outside the cell and there is a high concentration of water inside the cell. Yes. The name of the process is called osmosis. Yes. Osmosis में आप एक बात भूल गए बेटा. The very important thing. ये सब कुछ same है. It is the same flow. High concentration. Go to high concentration. Yes बेटा. पार्थ क्या बोले? Ma'am, high to low concentration. हाँ जी. आगे भी आप एक word बोले हो. No, ma'am. Okay. I wanted to listen. That is why शायद मेरे कान में वो word है. ये जो है high concentration to low concentration, specifically जब आप water की बात करते हो, it is via या across a semi-permeable membrane. उसको क्या बोलते हैं? उस process को yes भव्य आपने बोला है वो. क्या बोलते हैं बेटा? Osmosis. Very good. Okay, everyone. Osmosis. Yes, ये point clear है सबको? What is Yes, the ma'am. basic difference between diffusion Yes, ma'am. and osmosis? और दोनों में similarity क्या है? ये भी clear है. Similarity is the basic concept. वो high concentration से low concentration में ही जाएगा. अच्छा मुझे ये बताओ, चलो मैं आगे अभी move on करती हूँ. We have अभी आपने मुझे दो तरीके के movements बताई. क्या we have anything in our store जो low concentration से high concentration में जाए? कोई ऐसा है mode of transportation? Oil and water. नहीं, mode of transportation मुझे उसका नाम चाहिए. The mechanism of transportation actually. जो low concentration. Endocytosis. Sorry, क्या बोल रहे हो? Endocytosis. No, that is a kind of osmosis only. वो हम नहीं लेके चलेंगे. Amoeba. हम बात Ma'am, question repeat कर दो. I'm just repeating the question. कि whether any substance it moves from low concentration to high concentration. क्या ऐसा कभी होता है?
hot water and cold water. No, ma'am. नो मैम, अरे होता है बेटा। एक हमारी थर्ड नहीं थी जिसमें हम एनर्जी यूज करते थे, क्या था वो? ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, मतलब वी आर गोइंग अगेंस्ट द नॉर्मल थिंग, तो हमें क्या चाहिए? वी नीड एनर्जी, राइट? तो वो क्या था? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। भूल गए? हम करते थे ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आप, अच्छा मैंने आपको मैम ये तो एग्जांपल हमसे दिया था। किया नहीं। नहीं, मैंने आपको एग्जांपल दिया है, जैसे अब वाटर सप्लाई आती है नॉर्मल, ठीक है, आ रही है तो ठीक है, लेकिन क्या होता है कई जगहों पे पानी कम, उसकी पावर सप्लाई कम है, तो व्हाट वी डू, वी स्विच ऑन द मोटर बटन, हमने एनर्जी लगाई तो पानी आ गया अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है हाई कंसंट्रेशन से लो। बट समटाइम्स इट हैपेंस, जैसे कि जो ये होते हैं ना आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल न्यूट्रिएंट्स, जब वो रूट हेयर से आपके प्लांट में जा रहे हैं, दे आर गोइंग अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि जो रूट हेयर है वो बहुत पतला होता है, राइट? रूट हेयर इज वेरी 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 थिन, तो उसमें जगह कितनी थोड़ी सी होगी, इतनी सी जगह होती है बस। अब यहाँ पे अगर न्यूट्रिएंट्स होंगे तो ऑब्वियसली उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। बाहर कैसे हैं न्यूट्रिएंट्स? फैले हुए हैं, तो कंसंट्रेशन कम हो गई, लेकिन हमें लेके तो बाहर से अंदर जाना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे आपको एनर्जी लगानी पड़ती है। द न्यूट्रिएंट मैकेनिज्म इज ऑलवेज विद द यूज ऑफ एनर्जी, और वो उसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। क्लियर? ठीक है, भूलना नहीं है। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एंड थर्ड इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, डन। चलो अब Yes, मुझे पार्थ आप बताओ बेटा, व्हाई द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? यस, हम इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को? Yes, beta. Why do we call it as selectively permeable membrane? आशी, आप बता सकते हो? Yes. आज किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? मैम आ रही है, अच्छे से आ रही है। Yes, बेटा आशी, I want to. हम तो वेट कर रहे हैं। I know. अब Yes, आप, ma'am, बिल्कुल। हाँ सियाने बच्चे हो ना, सुनते हो मैम की बात। आशी, tell me बेटा, why the plasma membrane is called a selectively permeable membrane? What do you mean by the term selectively? Selectively मतलब क्या होता है? हम चीजों को सिलेक्ट कर रहे हैं, राइट? सपोज आपके पास, सपोज यू हैव अ मिक्स फ्रूट, तो आप पहले क्या करते हो? द वंस व्हिच आर योर फेवरेट वन, आप उसको खाओगे। यू आर बीइंग सिलेक्टिव इन दैट, राइट? तो इसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी यही करता है, इट डजंट अलाउ एवरी मटेरियल टू पास थ्रू इट, इट वोंट अलाउ, अदरवाइज इसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी, राइट? तो ये क्या करता है? इट अलाउज ओनली सर्टेन मटेरियल्स टू पास थ्रू इट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? सेकंड नेम इज, भव्य सेकंड नेम क्या होता है? सेमी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी मतलब हाफ परमिएबल, मतलब ये पूरी तरह से हर चीज को अलाउ नहीं करता। अच्छा, जो सेल वॉल होती है, क्या वो भी सिलेक्टिवली परमिएबल होती है? नो मैम। नो। यस, वेरी गुड। तो सेल वॉल जो है, इट इज फुली परमिएबल, वो हर चीज को अलाउ कर देते हैं। यस, यू गो इनसाइड, यू गो इनसाइड। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी ऐसा करने लग जाए तो आवर सेल विल गेट बर्स्ट आउट। तो इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एक्टिंग एज द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बिकॉज it is giving permission to only certain materials to pass through it. Okay? Yes? Clear? मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ हमको so सेल that, के बाहर भी नहीं जाने देता। yes, और pass, को बेटा pass through it मतलब आना जाना, दोनों चीजें हो गई, ठीक है? Does not allow all materials to pass through it. Only certain have the permission. Okay. एक्सक्यूज मैम, Yes, बेटा। हम फिफ्थ क्वेश्चन में टेबल तो है नहीं। बेटा मैंने जान के वो टेबल उड़ा दिया। टेबल मैं आपको क्यों दूं? आप तो बता सकते हो मेरे को सारे पॉइंट्स, राइट? हम कितने पॉइंट्स आने बता मैम दो। प्रोकैरियोटिक Ma'am, प्रोकैरियोटिक cells are primitive cells. Eukaryotic cells are अरे एक मिनट रुको। यस आशी, आप कुछ बोल रहे हो बेटा?
मैम पीरियोडिक सेल विदाउट न्यूक्लियस से बनता है और इक्वेरिटिक सेल विद न्यूक्लियस बनता है। अरे वाह, क्या बात है ये। अच्छा जी, चलो सबसे पहले हम पॉइंट प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियोइड होता है। रुको रुको, वन बाय वन। द फर्स्ट पॉइंट वाज गिवन बाय पृथ्वी। पृथ्वी आप रिपीट करो पॉइंट अपना। Ma'am, prokaryotic cells are primitive cells and eukaryotic cells. यस, ये प्रिमिटिव हो भूल गए। गया। ओके, दे आर द न्यूअर वंस। ओके, यस। नेक्स्ट पॉइंट आशी, आप बताओ। आशी, मैम पीरियोडिक सेल विदाउट न्यूक्लियस बनता है और इक्वेरिटिक सेल विद न्यूक्लियस बनता है। ओके बेटा, इट इज नॉट विदाउट न्यूक्लियस। वो जो न्यूक्लियस होता है, इट इज द पुराना टाइप न्यूक्लियस। इट हैज न्यूक्लियोइड। यस, इट इज न्यूक्लियोइड। तो इसके पास क्या होगा, इट हैज गॉट न्यूक्लियोइड। ठीक है बेटा। और इसके पास क्या होता है, सॉरी यहाँ पे बनाना और चाहिए दूसरे वाले पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विद ट्रू न्यूक्लियस होता है। ट्रू न्यूक्लियस बेटा, जैसे Ma'am, हमने cell wall नहीं lack करती। सेल वॉल नहीं बच्चे, हम वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है बेटा। ठीक है, हमारा जो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल है, उसमें बेसिक डिफरेंस जो है वो प्रोकैरियोटिक के पास यस बेटा, मैम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है प्रोकैरियोटिक के पास। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के ना। पास होती है, राइट। प्रोकैरियोटिक के पास होती है। यस, वेरी गुड। सो हमारे प्रोकैरियोटिक के पास देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आज अंशु, यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग बेटा, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? एक पॉइंट और है भव्य, आप बता सकते हो बेटा। देयर इज वन मैम मोर सेल बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। सॉरी उल्टा बोल दिया। प्रोकैरियोटिक में एबसेंट है, दूसरे में प्रेजेंट है। ओके पार्थ, आप एग्जांपल दे सकते हो सेल बाउंड ऑर्गेनेलीज का? और कोई? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स। यस, तो इसमें क्या है, ओके बेटा। Yes. ये जो माइनस ऐसी है, दिस इज एब्सेंट और प्रेजेंट। अब मुझे इसका एग्जांपल प्रोकैरियोटिक सेल का Prokaryotic का example mitochondria. मुझे इट इज नॉट अ सेल, इट इज अ सेल Oh, ऑर्गेनेली। sorry ma'am. कोई बात नहीं, कोई नहीं। हाँ जी, Apparatus. सॉरी। बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगे बैक्टीरिया। है ना, ब्लू ग्रीन अलगे होता है, साइनोबैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया। ओके, तो वी विल राइट डाउन। मैम इक्वेरिटिक में ह्यूमन। माइका। यस ह्यूमन, यस यूकैरियोटिक में ह्यूमंस लिख देते हैं हम, वो सबसे सेफ है ना। गलत होने का मम्मी तो सबसे चांस एनिमल्स है। लिख दो, उसमें ह्यूमंस वगैरह सारे आगे। यस, सभी आगे, हम अपना नाम लिख देते हैं ना, टू बी ऑन द सेफर साइड, राइट। ओके चलो, can you name the two organelles that we have studied and they contain their own genetic material? Yes. Chromosomes, DNA and RNA. नो बच्चे, आप क्वेश्चन नहीं समझे, रुको मैं आपको क्वेश्चन समझा दूं। पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं वो, ऐसी दो ऑर्गेनेलीज बतानी है आपने जिनके पास अपना जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, ये क्रोमोसोम, डीएनए, राइट। ये उनके पास खुद Yes. का है। ऐसे कौन से दो ऑर्गेनेलीज थे? यस, डीएनए आरएनए। वो तो जेनेटिक मटेरियल होता है बेटा। ये कौन से ऑर्गेनेलीज के पास था? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स। यस, वेरी गुड भव्य, इट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। वेरी गुड, ठीक है बेटा, ये याद रखना है हमने। मैं ये इतनी से बोल रहा था लेकिन माइक ऑन करना भूल गया था। हाँ, ये बेटा क्या है, ये आपको एमसीक्यूज में काफी क्वेश्चन आ सकता है। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। मैं इस क्वेश्चन के आगे स्टार भी पुट कर रही हूँ, तो काइंडली लर्न दिस थिंग वेरी थॉरली। ओके, नाउ आशी, यू टेल बेटा, if the organization of a cell is destroyed due to some physical or chemical influence, what will happen? अगर हमारी सेल डिस्ट्रॉय हो जाए तो क्या होगा? What will happen? ऑर्गेनाइजेशन विल डिस्ट्रॉय। हाँ श्योर, बताओ। यस बेटा बताओ। उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन बिगड़ जाएगी फिर और वो एक्सपायर नहीं कर पाएगा। राइट, तो सेल विल नॉट बी इन्फॉर्म्ड, सेल विल फॉर्म द रेसिडेंशियल, राइट। It will not be able to keep chemical composition. ऐसे जो फंक्शंस के लाइक इट विल, राइट। ओके चलो, अब नेक्स्ट पार्ट बताओ बेटा, व्हाई लाइसोसोम्स नोन एज, लाइसोसोम्स को हम सुसाइड बैग्स क्यों बोलते हैं? यस बेटे,
मैम वेट। अच्छा बेटा, यस बेटा, लाइसोसोम्स जो होते हैं, मैम बिकॉज हम्म, मैम बिकॉज, जब भी कोई हाँ जी पार्थ बोलो मैम बेटा, एक मिनट उसको ट्राई करने दो, वो ही इज मैम आंसरिंग, यस, से मैम बाउंड करता है मैम। ओके। अच्छा, लाइसोसोम्स में होता क्या है? एंजाइम्स यस, किस तरह के जो एंजाइम? केमिकल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं नहीं, और किस जो हम सेल को डिस्ट्रॉय जो करते कुछ खा देता है, नहीं, मैंने नाम बताया था आपको, किस हम तरह जो के फूड एंजाइम? डाइजेस्ट हैं, करते हैं। डाइजेस्ट Yes, कर देते yes, हैं। yes, yes. Very good. It is digestive enzymes. So they contain digestive enzymes. लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आती है? एंजाइम्स तो ठीक है इनके पास हैं, लेकिन जब इनको ये सिक्रीट करना होता है, they have to burst themselves, right? तो जब भी in order to release the enzymes, they burst themselves. That is why they are called suicide bags. Or along with this digestive enzymes, they also store some kind of waste material also, right? हम ये कई बार सेलुलर मेटाबॉलिज्म में डिस्टरबेंस से भी हो सकते हैं ना। हाँ जी, ठीक है। तो जब भी इसको ये एंजाइम्स को रिलीज करना होता है, इट बर्स्ट इटसेल्फ, ये खुद को क्या कर लेता है, जैसे मैम बोलते हैं जब कोई फॉरेन बॉडी सेल में आती है तब बर्स्ट होते हैं ना लाइसोसोम्स। नहीं नहीं बेटा, इसमें क्या होता है, फॉरेन बॉडी वो नहीं, ये एक्चुअली क्या होता है, इसमें एक तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, राइट? दूसरा ये क्या करता है, समटाइम्स टू सम एक्सटेंट ये वेस्ट मटेरियल को भी स्टोर करता रहता है। तो जब आपको या तो डाइजेशन करना है तब एंजाइम्स चाहिए, राइट? अगर वो सिक्रीट नहीं हो रहे हैं आसपास, तो ये क्या करता है, इट गेट्स बर्स्ट आउट। जब इसका वो वेस्ट जो है बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये बर्स्ट आउट कर जाता है और ये पूरा का पूरा खत्म हो जाता है लाइसोसोम। इट्स अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल थैली टाइप स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है? burst itself, that is why it is called suicide bag, okay? ये भी बेटा एमसीक्यूज का एक इंपॉर्टेंट Yes. क्वेश्चन है। सुसाइड बैग्स कौन से होते हैं बेटा? लाइसोसोम्स, राइट? ओके, अंशु, कैन यू टेल मी वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द बॉडी? प्रोटीन्स कहाँ बनते हैं बेटा? एक्सक्यूज मैम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, हाँ जी भव्य। मैम एक रफ बुक में हमारा एंडोप्लाज्मिक क्वेश्चन आया था एरिया। प्रैक्टिस टेस्ट में कि ना जो एसीआर होते हैं वो कुछ ड्रग्स वगैरह भी वो करने आ सकता है, डिऑक्सीफाई। हाँ जी बेटा, मैंने लिखा है। डिटॉक्सिफाई कर देता अगर है। आप स्मूथ जो एनासिन है वो आपका या तो लिपिड बनाने के काम में आता है, राइट? या फिर जो भी आप ड्रग्स ले रहे हो, पॉइजन जा रहा है, उन सबको उसके इफेक्ट को कैंसिल आउट करता है, ओके? जो हमारा रफ ईआर है वो हमारा प्रोटीन फैक्ट्री है, ओके राइट? मैम, उसने हमारा उसने हमारे क्या बनाने हैं, प्रोटीन्स बनाने हैं। और दूसरा राइबोसोम्स के साथ साथ कौन है, ये होते कहाँ है राइबोसोम्स? रफ राइबोसोम्स इन साइटोप्लाज्म। यस, ठीक है, रफ मैम ईआर पे भी होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चिपके होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, रफ ईआर, ठीक है। नाउ अंशु बेटा, आर यू एबल टू लिसन टू मी? आप सुन पा रहे हो बेटा? चलो, अब हमें प्लांट और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस है, बट डोंट स्क्रीम, आई विल आस्क वन बाय वन, ओके? हमें ऐसे रुको रुको, सबको टर्न मिलेगी। लेट मी राइट फर्स्ट, क्योंकि इस पेन से लिखना ही बहुत बड़ी वो है टाइम लग जाता है, ओके? चलो, आई विल स्टार्ट विद, हम टाइप कर लो अच्छा, हाँ जी, हम इसे टाइप कर लो। नहीं, वन नोट में इट्स डिफिकल्ट। चलो भाई, प्लांट सेल, भव्य स्टार्ट बेटा। ओके मैम, हम प्लांट सेल की जो प्लांट सेल में सेल वॉल होती है इन एडिशन विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन जो एनिमल सेल होते हैं उसमें सिर्फ एक फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, कोई सेल वॉल नहीं होती। ओके, सो आप कह रहे हो कि प्लांट सेल में वी हैव अ सेल वॉल, बट इन एनिमल सेल देयर इज नो सेल वॉल, ओके? पृथ्वी, नेक्स्ट पॉइंट। मैम प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होते हैं और एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होते। वेरी गुड। सो हमारे यहाँ पे क्या है, सॉरी, प्लांट सेल्स में यू हैव प्लास्टिड्स, ओके? एंड इन एनिमल सेल्स देयर इज नो प्लास्टिड, ओके? पार्थ, नेक्स्ट मैम पॉइंट बेटा। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल होता है।
मैम जो प्लांट सेल में वैक्यूल्स होते हैं इन लार्ज साइज और एनिमल सेल में नहीं भी होते, ओके ग्रेट। होते तो है पर वो बड़े स्मॉल साइज में होते हैं। हाँ जी, यहाँ पे क्या है, द वैक्यूल इज ओके। न्यूक्लियस इज फुल ऑफ नो भव्य, नो 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 नो, अभी आपकी टर्न नहीं आई, आप उनको पॉइंट्स दे दोगे, जाओ। आशी, नाउ वेरी स्मॉल साइज्ड, आई एम राइटिंग इट इन वेरी शॉर्ट। आप लोगों ने ये शॉर्ट में नहीं लिखना, मैं पहले ही बता रही हूँ आपको बेटा। ओके चलो बच्चे, आशी टेल मी। यस आशी। हाँ जी बेटा। मैम यस यस, नेक्स्ट। क्या चीज इसमें नहीं होती और एनिमल सेल में होती है, ऐसा भी कुछ होता है? यस मैम। यस मैम। होता है मैं ना? बताऊं? नहीं रुको रुको, आशी को ट्राई तो करने दो। ऑब्वियसली पास ऑन होके तो तुम लोगों के पास ही आएगा क्वेश्चन, कहाँ जाएगा? अब मैं 10 से तो पूछूंगी नहीं, मैम तो राइट? बहुत सारे पॉइंट पड़े हैं। यस, मैंने पूछना तो 9 से है, 10 से तो मैंने पूछना नहीं ना, 8 से पूछना है, राइट? हाँ जी आशी, डू यू नो? मैम वैसे तो 8 को भी आता है। यस, बट अभी उनका चैप्टर नहीं आया। हाँ जी, नो? अंशु, आप बता सकते हो बेटा? आज अंशु को तो आवाज ही नहीं आ रही है, आई थिंक सो, थोड़ा सा इशू आ रहा है नेट का। चलो पृथ्वी आप बताओ। मैम प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। नो, होता है बेटा, वो तो यूकेरियोटिक सेल है बेटा, वो तो होगा ही मैम होगा। होता है दोनों में। होता है होता है। मैम मैं बताऊं? हाँ जी बताओ। मैम उसमें प्लास्टिड भी होते हैं और एनिमल में प्लास्टिड होते हैं। एनिमल्स में प्लास्टिक मैम होता है? गलत बताया, सॉरी उल्टा बोल दिया। एनिमल्स एनिमल में में नहीं प्लास्टिड नहीं होते, होते। प्लांट में प्लास्टिड होते हैं। हाँ, बट वो वी हैव ऑलरेडी रिटन द पॉइंट। मैम ओ इन सेकेंड मैम ऐसे तो और भी बताए। न्यूक्लियस मैम प्लांट सेल इज लार्जर देन एनिमल सेल और एनिमल इज स्मॉलर देन प्लांट सेल। ओके फाइन, ठीक है, लिख लेते हैं ये पॉइंट। और कोई पॉइंट? यस मैम। यस मैम न्यूक्लियस इज पुश्ड टू अ साइड इन प्लांट सेल और यस एनिमल सेल में न्यूक्लियस बीच में होता है। यस, ठीक है, और एक पॉइंट और है अभी, इनफैक्ट 2 पॉइंट्स अभी और है। न्यूक्लियोलस। नो, इट इज रिलेटेड टू द रिप्रोडक्शन। कुछ ऐसा पर्टिकुलर ऑर्गेनली है विच इज देयर इन एनिमल सेल, बट वो आपको प्लांट सेल में नहीं मिलता। प्लांट्स रिप्रोड्यूस प्लांट सेल डिवाइड करते हैं जिस सेल क्रोमोसोम्स। से। ऑक्सीजन एंड नो 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 एनिमल्स नो नो नो, रिप्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं नहीं पार्थ, ये पॉइंट नहीं आएगा इसमें। न्यूक्लियस पुश टू वन साइड। जेनेटिक मटेरियल। नो बच्चा, अब मुझे लगता है मुझे ही बताना पड़ेगा, है ना? यस मैम। क्रोमोसोम्स। नो बेटा, क्रोमोसोम्स तो दोनों में मिलेंगे, दोनों यूकेरियोटिक सेल्स हैं। जो क्रोमैटिन मटेरियल। एनिमल सेल होता है उसमें यू हैव सेंट्रियोल्स, प्लांट में नहीं होता, राइट? सो इन प्लांट सेल्स देयर इज नो सेंट्रियोल प्रेजेंट, और सेंट्रियोल्स आपकी रिप्रोडक्शन में काम आता है, ठीक है? सेंट्रियोल्स एब्सेंट और यहाँ पे सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट। वन मोर पॉइंट इज देयर, जो ये जो होते हैं ना प्लांट सेल्स, इनके पास प्लाज्मोडेस्माटा होता है विच इज योर इंटरकनेक्शंस ऑफ द सेल वॉल, ठीक है? और एनिमल सेल में तो सेल वॉल ही नहीं होती, तो प्लाज्मोडेस्माटा तो होने से रहा, राइट? सो नेक्स्ट पॉइंट इज कि इनके पास प्लाज्मोडेस्माटा होता है, ओके? दिस इज द इंटरकनेक्शन बिटवीन द यस मैम। टू सेल्स, जो सेल वॉल होती है उसके बीच में कनेक्शन होता है, एंड हेयर इट इज एब्सेंट, ओके? प्लाज्मोडेस्माटा, राइट? मैम मेरे ख्याल से एक और पॉइंट पड़ा है। हाँ जी बताओ। मैं वही सोच रहा हूँ कौन सा पड़ा है। चलो keep thinking, whenever it will strike just let me know, we will just scroll up the thing and write it down, okay? चलो अब मुझे पार्थ हम 11th क्वेश्चन तो कर चुके हैं। हाँ कर चुके हैं, just we'll write one thing. Parth, you tell me, how is a prokaryotic cell different from a eukaryotic cell?
मैम कॉपी पेस्ट कर लो। नो, इट लैक्स, वहां पे हमने डिफरेंसेस लिखे, यहाँ पे हमें सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल का बताना है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ यूकैरियोटिक सेल। इट लैक्स, यस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोटिक सेल्स ओल्ड होते हैं। यस, इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, And राइट। prokaryotic मैम इसमें cells found न्यूक्लियोइड in होता है, bacteria. न्यूक्लियोइड। सॉरी बेटा, क्या बोल रहे हो पार्थ? मैम ये में बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया। फाइन, ठीक है, एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, फिर उसके मैम पास सेल, मेम्ब्रेन माउंट ऑर्गेनेल्स नहीं होते। यस, दैट इज द पॉइंट कि इसके पास क्या नहीं होता, कि मेम्ब्रेन, Mode bound cell organelles. यस, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैम न्यूक्लियर अच्छे डेवलप नहीं हो सकता। इसका न्यूक्लियर, जो न्यूक्लियर होता है ना, इट इज इन द सेल, ठीक है, न्यूक्लियर इज लाइंग इन द सेल, ठीक है, लाइंग न्यूक्लियस। हाँ जी, प्रोकैरियोटिक में एक क्रोमोसोम होता है, यूकैरियोटिक में बहुत सारे होते हैं। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या है, इट विल हैव डिमार्केशन बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड सेल, ओके, इट हैज डिमार्केशन ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, तो इसलिए वो क्या होता है, राइट। व्हाट वुड हैपन इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर गई तो क्या होगा? सुनने में मैंने ना प्लांट्स के एनिमल टिश्यूज के बारे में मुझे पता नहीं चल रहा जो मुझे आया। नो इश्यूज। आप बताओ what would happen, आप बताओ क्या होगा अगर ये रप्चर कर गई तो? मैम ये अपने सारे सेल बाउंड ऑर्गेनेल्स या फिर सारा सामान अपने अंदर नहीं रख पाएगा, इसकी इनविजिबिलिटी लॉस हो जाएगी, और मैम वही पॉइंट है। The cell will lose its identity because now its cell organelles are not in, they are not enclosed within some kind of क्या बोलते हैं, encroachment, right, which was there in the form of plasma membrane, and the cell will die, will lose its identity, ठीक है। तो सेल जो है अपनी आइडेंटिटी खत्म कर देगा, राइट। all its inclusions will not be bound if there is no Golgi मैम apparatus. पैकेजिंग ऑफ फूड विल बी नॉट देयर। ओके, यस, हम इसमें क्या करेंगे बेटा? लाइसोसोम्स ही बनेंगे। हाँ जी, एक सेकेंड बेटा, व्हाई राइबोसोम्स? गोल्जी एपरेटस थोड़ी ना बनाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स, ओके फाइन। देखो, जब भी आपको कुछ इस तरह का क्वेश्चन आता है कि व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ इफ देयर वाज नो समथिंग, राइट, तो आपने क्या करना है, जो भी इसके फंक्शंस होते हैं उसके बारे में लिख देना है। अब जैसे गोल्जी एपरेटस का क्या है, जैसे मुझे भव्य बता रहा है कि मैम देयर विल बी नो पैकेजिंग, राइट, पैकेजिंग नहीं होगी तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, पैकिंग नहीं हो रही है तो क्या होगा, आप मटेरियल्स को कैसे पैकअप करोगे? जो वेस्ट मटेरियल है उसको पैकअप करके रखना पड़ता है, जो चीज न्यू बन रही है उसको पैकअप करना है, बिकॉज आपको जो सेल है इट इज गोइंग टू ट्रांसपोर्ट दैट एवरी मटेरियल टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, राइट। जो भी एक सेल की बॉडी है उसमें हर जगह जाएगा, हर एक को एनर्जी चाहिए, हर एक को प्रोटीन चाहिए, हर पार्ट से आपका वेस्ट आ रहा है, तो दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। तो पैकेजिंग बड़ी जरूरी है। देन बेटा, लाइसोसोम्स नहीं है, तो लाइसोसोम्स क्या करते हैं? they have got the digestive enzymes, right, तो digestive enzymes ही नहीं है तो digestion process will be delayed, तो ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और क्या होता है बेटा? मैम एक और काम करते हैं, 2 मिनट सोच रहा हूँ। हाँ, they are connected with the ER also ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी तो कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसने वो कोरियर का काम करता है, ये कनेक्टेड होते हैं उससे, राइट। तो वो कोरियर किस चीज को करेगा? कोरियर, राइट, तो ER का काम है वो भी, राइट। तो इससे now part you tell me which organelle is known as a part of the cell, power house कौन सा है हमारे सेल? अरे पार्ट कहाँ है? पार्ट 4, यस, राइट। क्योंकि वो एटीपी छोड़ता है, जो कि एनर्जी करेंसी है सेल की। एटीपी इज यूज्ड इन द वेरियस फंक्शंस ऑफ द सेल। यस, माइटोकॉन्ड्रिया। यस, तो ये क्या बिकॉज हाँ जी पार्थ बताओ। मैम माइटोकॉन्ड्रिया
and it gives energy to the cells. यस, टू फॉर्म एनर्जी। ये फूड को ऑक्सीडाइज करता है, एनर्जी बनाता है इन फॉर्म ऑफ एटीपी। यस, एटीपी की कोई फुल फॉर्म बता सकता है मुझे? एडिनोनॉइस ट्राइफोसल्फेट, नहीं ट्राइफोस्फेट। ट्राइसल्फेट, यस। ओके, गुड पृथ्वी। चलो, now where do lipids and proteins constituting the cell membrane get synthesized? It is just one word answer. कहाँ पे बनते हैं lipids and proteins? हम ER। तो lipids जो हैं, yes, smooth ER, ठीक है। lipids आपके बनते हैं SER and RER both। yes, और proteins बनेंगे rough ER पे, right? RER। yes, तो ये दोनों किसका हिस्सा है बेटा? They are the part of endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum। Yes. Okay. Now, how does an amoeba obtain its food? Amoeba food कैसे obtain करता है? By the process of? Ma'am, may I tell? Yeah, sure. Endocytosis। Yes. Endocytosis. Ma'am, the amoeba digests its food through a flexible membrane. The flexible membrane moves around the food and traps it inside. Food vacuole बन जाता है, the process of release, high concentration से low concentration. And process of endocytosis, endo means it is going inside the cell, or we call it cytoplasm. What is osmosis? Yes, beta. Ma'am, osmosis is defined as the diffusion of regions of higher concentration, regions of lower. Yes. Okay. हाँ जी, क्या पूछो बेटा? ना अमीबा जो फूड करता है किसके लिए? हाई कंसंट्रेशन से वो क्या करता है? तो गैसेस के लिए होता है। नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट। वो हमारे को क्या करना है, हम मूवमेंट को ले सकते हैं, किसी मटेरियल की मूवमेंट को लेते हैं, तो क्या करता है बेटा, जो ही आपका खाना होता है वो टेम्परेरी स्टमक बना लेता है, राइट? टेम्परेरी स्टमक बनाने के बाद उसको एडजस्ट होता है, सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में होता है, राइट? वो एज इट इज फूड नहीं आता, फूड जा रहा है सोल्यूबल फॉर्म आफ्टर बीइंग डाइजेस्टेड। वो डाइजेशन जो है वो उसके वैक्यूम में हो जाता है। जैसे ये आपका अमीबा है, राइट? इट विल एनलार्ज ओवर देयर, यहां पे टेम्परेरी स्टमक है, इसको मैं अपना शरीर फॉर्म में डाइजेस्ट में हो जाता है, इतना होता है जब वेट वेट बाहर निकलता है, just because of this we say concentration very follow. Yes, give the osmosis definition. Osmosis is the exchange lipid plus semi-permeable in from lower layers of the. Okay, अब आगे moderation in your definition. Osmosis is as the movement of water molecules across a semi-permeable along the concentration of along the concentration and low concentration, right? Okay, this is क्या बताओ? Scoop each time से आप डाल लूँगा। तो क्या करना है? राइट? कितना है? एक पोटैटो बॉइल्ड कप है। हाँ जी, एक पोटैटो को बॉईल करना है। यस, यू आर करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे मैंने देख लिया था। एक्चुअली क्या होता है, जो टाइपिंग करता है ना, फिर हम तो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, तब तो चेक होता नहीं, जब हम काम करवाते हैं तब चेक हो जाता है। ठीक है, अब देखो क्या करना क्या है आपने। ए कप को आपने बिल्कुल खाली रखना है। बी कप में यू हैव टू पुट 1 टीस्पून शुगर, सी में आप 1 टीस्पून सॉल्ट पुट कर रहे हो, और एक में आपने बॉइल्ड पोटैटो कप में शुगर पुट किया। आपने इसको 2 घंटे रखा। नाउ इट इज सीन कि जो पानी है वो बी और सी में कलेक्ट हो गया। बाय मैम मैं बताऊं? हाँ जी बताओ। मैम मेरी क्लास है, मैं लीव कर सकती हाँ जी आप लीव कर जाओ। थैंक यू मैम, बाय। ओके बेटा, बाय। मैम जो पोटैटो का बी और सी है मैम वो बॉइल्ड नहीं है मैम। जो बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सऑस्मोसिस मैम जो पानी है वो उन पोटैटो की सेल्स में आ जाता है। फिर उसके बाद जो हमने 1 टीस्पून ऑफ शुगर और सॉल्ट डाला था वो हमारे लिए फंक्शन काम करता है एज अ फंक्शन। और उसके बाद बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोस्मोसिस जो पानी सेल्स के अंदर था वो हॉलोड पार्ट के अंदर आ जाता है। यस, ये जो दोनों कप्स है ना बेटा, दे आर इन द हाइपरटोनिक स्टेट, मतलब इनके पास सोल्यूट ज्यादा है एज कंपेयर टू द सॉल्वेंट। इसीलिए जो बाहर सॉल्वेंट प्रेजेंट है वो सारा सॉल्वेंट इन कप्स में आ जाएगा, विच इज कॉल्ड एज एंडोस्मोसिस। वेरी गुड, ठीक है बेटा। ओके, नाउ अब ये बताओ पॉट ए क्यों जरूरी था? हमने वो खाली पॉट क्यों रखा? इन ऑर्डर टू यस, हाँ, टू स्टैंडर्डाइज द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आपने कंट्रोल सेट के लिए आपने उसको रखा है। ठीक है, कंट्रोल सेट। Then explain why water doesn't gather in the hollowed out portions of A and B. A में तो देखो there is no solute. Yes बेटा.
मैम क्योंकि ए में सल्यूट नहीं है इसलिए वो अंदर नहीं जा पाता पानी, और डी के जो वो है सेल्स है पोटैटो के मैम वो बॉईल करने की वजह से मर चुके हैं, इसलिए Yes. उनके अंदर वो पानी नहीं आता। तो सेल्स जो हैं दे आर डेड बिकॉज ऑफ द बॉइलिंग, दैट इज वाई डी में तो नहीं पानी आ रहा, और ए में क्या हो रहा है बिकॉज द जो सोल्यूट कंटेंट है वो एक जैसा ही है, so it is isotonic, तो इस वजह से मूवमेंट नहीं हो रही है। So with this we finish off our back exercises of the chapter. मैम इसका एक क्वेश्चन है। Okay, क्या है क्वेश्चन बताओ? It's not there. माइटोसिस और माइटोसिस। Okay, fine.